کے بغیر نہ چار یار مکمل ہو، نہ پنچتن مکمل ہو۔ چلو میں اب رو کے مجھے بات کرنا پڑے گی۔ وہ پٹھان بھائی ٹماٹر بیچ رہا تھا، اوپر پانی چھڑک رہا ہے، ساتھ والے نے کہا جب ہوش آ جائے مجھے بھی آدھا کلو دے دو۔ میرے خیال سے اب سارے آ گئے، اب سب کو ہوش آ گئی کہ ہم جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایسے بیٹھے کہ کیک کٹائے کے ساتھ مولوی بھی نہ لگا جائے۔ اب مہربانی کریں میری طرف توجہ کریں، جو میرے ساتھ ہو چکا یہ کافی ہے، اب آپ میرے ساتھ توجہ کریں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جس علی کے بغیر نہ چار یار مکمل نہ پنچتان مکمل۔ میں گفتگو کر رہا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں، اس رجب میں بھی کا اظہار نظر نہیں آیا۔ اگر بھی ہے، آپ بھی مانتے ہیں، آپ کی مسجدوں میں چراغاں کیوں نہیں؟ وہ علی کو ماننا شیعہ کی بھی مجبوری ہے، سنی کی بھی مجبوری ہے۔ جو اس موسم میں بھی چادریں سنبھال کے بیٹھے ہو، ان کو نرم کازو کمری والے کی چادر کا واسطہ۔ شیعہ کا ماننا بھی مجبوری، سنی کا بھی مجبوری۔ میری طرف سے سر کیوں؟ شیعہ نہ مانے پہلا امام نہیں ملتا، سنی نہ مانے چوتھا خلیفہ نہیں ملتا، اور شیعہ کا بھی ماننا مجبوری۔ اچھا ایک طرف دیکھنا کیوں مجبوری ہے؟ شیعوں کا پہلا علی، سنیوں کا آخری علی، بس فرق اتنا ہے ان کا دین ختم علی پہ ہوتا ہے، شیعوں کا دین شروع علی سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جس علی کی غذا، کون علی ہے؟ تعارف کروا رہا ہوں۔ جس علی کی غذا 3 دن کی سوکھی روٹی گھٹنے پہ توڑ کر پانی میں بھگو کر خود بھی کھائے، نوکر کو بھی کھلائے۔ جوانوں بولا آپ میرا کل ہو، نوکر کو بھی کھلائے، لیکن طاقت اتنی درے خیبر کو انگوشت کی پشت سے، ناخن کی نوک سے ایسے اکھیڑے جیسے پرندے کا پارو کھیڑا جاتا ہے، اسے ہی تو علی کہتے ہیں۔ کیا کہنے؟ کیا کہنے قبلہ جی؟ اللہ اکبر۔ کون علی ہے؟ 13 رجب کی رات انسان کے گھر سے رحمان کے گھر۔ مبارک آپ نے صاحب جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں۔ میں نا ابھی مجھے کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں، سارے ہاتھ بلند کرو، سارے ہاتھ بلند کرو۔ میرے اللہ جو آج کے دن پریشان ہے اس کی پریشانی میں اضافہ فرما، جو آج کے دن خوش ہے اس کی خوشی میں اضافہ فرما۔ او خوش ہو جاؤ، آج اس کی آمد ہے جس کی وجہ سے حلالی حرامی کی پہچان ہوتی ہے۔ خدا کی قسم آج پتہ چلے گا، آج پتہ چلے گا کہ ناظرہ والوں نے کس کس کا شناختی کارڈ ٹھیک بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ 13 رجب کی رات، 13 رجب کی رات انسان کے گھر سے رحمان کے گھر، چلو جملہ تبدیل کرو۔ 13 رجب کی رات اپنے ہی گھر سے اپنے ہی گھر۔ اور سمجھے اس نزاکت کو یار، لاکھوں کے مجمع کو خطیب نے چاٹنا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، بیچنا ہوتا ہے، نہیں مجمع کام ہو کم زرد نہ ہو، اعلیٰ زرد تشریف فرماؤ، جملوں کی قدر کرو گے۔ 13 رجب کی رات انسان کے گھر سے رحمان کے گھر، کل انسانیت کو کل ایمان دینے کے لیے، کل انسانیت کو کل ایمان دینے کے لیے اسد کی ماں، اسد کی بہو، اسد کی زوجہ، اسد کی ماں، اسد کی بہو، اسد کی زوجہ اپنے گھر سے اللہ کے گھر میں ایسے آئی جیسے کوئی وارث اپنے وراثت کی طرف آتا ہے۔ چاند بھائی ہمارے وڈے کہتے ہیں، وڈے پتر گل ایسا کر، جشن پڑھ رہا ہوں یہ سوچ کے بیٹھنا، گل ایسا کر میرا پتر، دوبارہ نہیں کان ہوتے نے، دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، بنت اسد کے قدموں کی آڑ سن کے دیوار نے رستہ بنا دیا۔ جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہو، اوے ہاتھ باندھ کے رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، ذکر علی دل کھول کے کرو، ہاتھ باندھ کے رکھو۔
रखो, तुम्हारी मर्जी है, जिक्र अली दिल को खोल के करो। दीवार ने रास्ता बना दिया। अच्छा, कोई जितना भी बहादुर बंदा हो, दीवार गिरती देखे आगे नहीं बढ़ता, हट जाता है। मर्द की बात कर रहा हूँ, औरत तो फिर भी नाजुक दिल होती है। मुझे तारीख की किसी किताब से, फटी किताब, पुरानी किताब से दिखाओ, अली की बेटी, अली की माँ का एक कदम भी लर्जा हो, हड्डा हो ना। बीबी क्यों नहीं हटी? बीबी दीवार गिर रही है, बीबी ने न हट के, न डर के, न भाग के बता दिया, खबरदार मैं करार की माँ हूँ, फर्रार की माँ नहीं। अली अली दमस्त कलंदर अली अली फलाफात ये खबर अली अली फलाफात ये खबर अली अली कंबर का मौला अली अली जबरील का मौला अली अली शाफी का मौला अली अली तेरा भी मौला अली अली मेरा भी मौला अली अली जरा जोर से बोलो अली अली नारा हैदरी या अली मदद हक जियो जी। बीबी दीवार के पास पहुंची। मुझे चांद भाई ने कहा, मौलवी साहब छोड़ो छोड़ो जशान, क्या हुआ? तेरा रजब अब मैंने शुरू कर दिया है, खुदा का वास्ता मेरी मेहनत ज़ाया ना करना। मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, कुछ देना छो। मैं कहा क्या हुआ? मौलाना साहब आपका प्राइज बांड निकला है, प्राइज बांड इनाम। मैंने कहा क्या? वो 15 लाख रुपया। मैंने कहा चांद भाई सच है? कहने लगे सच है, आपसे कभी मजाक किया? आप इज्जत वाली जगह। मैंने कहा क्या कहने आपके? उसमें से 2 लाख तुम्हारा, 13 लाख मेरा, साथ ही मौलवी मर गया। जश्न है यार, हंसे कोई नहीं। मौलवी का मरना कोई एडा शौक है? बंदे जान बचाने के लिए सदका देते हैं, सदका मौलवी खा जाता है, मौलवी को कुछ नहीं। मौलवी मर गया, क्यों मर गया? इल्मे नफ्सियात कहता है इंसान पर औकात से ज्यादा, तेरा नजर पढ़ रहा हूं, इंसान पर औकात से ज्यादा खुशी आए तो वो मर जाता है। इंसान पर औकात से ज्यादा खुशी आए तो वो मर जाता है, दीवार पर आए तो वो फट जाती है। मैं कह गया तो पीछे रह गए। वाह 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 वाह, क्या कहने जियो। इंसान पर औकात से ज्यादा खुशी आए मर जाता है, दीवार फट जाती है। अद्धी राती मेरा दरवाजा खड़ गया, आवाज आई, मुझे बेगम ने कहा उठो, दरवाजे पे। मैं गया, शाह साहब थे। इतना खुशी बताया भी नहीं। कहने लगे मौलाना गया हुआ था फैसलाबाद, लेट हो गई। मैंने कहा जाते जाते मिलता जाऊँ, वक्त नहीं है। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मुझे नहीं पता चला अब क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या खिलाऊं, कहाँ बिठाऊं। क्यों? नफ्सियात कहती है जब इंसान पर अचानक खुशी आए, हाथ की रखी हुई चीज भूल जाता है। अली की माँ से बड़ा मेहमान कोई नहीं था। जब अली की माँ काबे में आई, काबा इतना खुश हुआ, रास्ता भूल गया, दीवारों में दर बनने लगे। अली हक के, वाह 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 वाह, क्या दीवारों में कहने दर बनने लगे, रास्ता भूल गई। और ऐसा दर बना, और इतना खुश हुई, इतना खुश हुई दीवारे कहबा, इतना खुश हुई दीवारे कहबा, इतना चाहा, इतना वेलकम किया, इतना चाहत से अपनी मेहमान नवाजी की इस कहबे की दीवार में कि आदम ने तौबा की तहरीर मौजूद है, नूह ने कश्ती बनाई तहरीर मौजूद है, ईसा ने मुर्दे जिंदा किए तहरीर मौजूद है, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई तहरीर मौजूद है, खंदक खैबर हुई तहरीर मौजूद है, अली की शुजाअत है तहरीर मौजूद है। लेकिन प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं। काबे की दीवार इतनी खुश हुई कि तहरीर भी मौजूद है, तस्वीर भी मौजूद है। क्या कहने। किस चीज का इफ्तिताह करना होना, इफ्तिताह इफ्तिताह। ओए हाथ खोल छड़ो जा, चलो हाथ बंदी रखो, जिक्र अली का दिल खोल के करो। अगे भी मैं गया, जिन्हें बदे ने वो मेरे खुले ने आखिर ना मालिक आपको सलामत रखे। कैसा कोई नया काम करना हो, कोई नया काम चांद भाई जी जी, तो उसका इफ्तिताह करना होता है। आप एक तारीख का जुमला सुना कि काबे, जब से काबा है ना, पहले दिन से काबे को सजदा नहीं है। काबे को सजदा हुआ है 2 हिजरी।
दो हिजरी को काबे को सजदा हुआ है। तो किसी चीज़ का भी इफ्तिताह करना हो तो उसका फीता काटते हैं या नहीं काटते? ये शाह साहब ने भी एक चैनल बनाया है, अल्लाह उसमें मज़ीद कामयाबी दे, कामयाब हो रहे हैं, अच्छे पैगाम भेजते हैं उसमें, नसीहत वाले, अदबी लग़वियात नहीं होती हैं। आज की रात का सदका इनको नेक पैगाम पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और इनको कामयाब करें। तो इन्होंने भी इफ्तिताह किया होगा ना, तो इफ्तिताह के लिए क्या किया जाता है? नेक बंदे को बुलाया जाता है, फीता काटा जाता है। तो पता चला ये लकीर नहीं है, काबे के इफ्तिताह का फीता काटा जा रहा है। और ऐसा फीता कटा गया, इतना कामयाब तरीन इफ्तिताह हुआ कि रिवायात कहते हैं दर्जन से ज्यादा दफा काबे की तामीर हुई है। जब से काबा है ना, दर्जन से ज्यादा दफा तामीर हुई, लेकिन इस लकीर को नहीं मिटा सके। चुप करके सुनो, छुरी थल्ले होए या उत्ते होए नुकसान तो खरबूजे का ही होता है। तुसी बोलो या चुप रहो, मैंने तो फीस मिल जानी। मालक आपको सलामत रखे, मैंने तो लेके जानी है। छुरी नीचे हो या ऊपर हो, नुकसान तो खरबूजे का ही, कटना तो बेचारे उसने ही है ना, फीस तो आपने देनी है ना। बुलाया है चुप ही रहो, फिर भी जश्न पढ़ना है। लेकिन मैंने पहले कहा है, जो आज अली के जश्न में खुश होगा उसे रईस मक्का अबू तालब खैरात देगा। जिसे अबू तालब कुछ दे दे वो फिर दुनिया में किसी का मोहताज नहीं होता। और ये सोच के जश्न में बैठना, तुम्हें 14 में से कोई एक मुस्कुराता दे के खुश हो गया, तुम्हारे लिए काफी है। ऐसा इफ्तिताह हुआ। मैं पहला जश्न वेख्या, मैंने 14 साल हो गए ने चांद भाई कि मैंने 20 मिनट हो गए पढ़ दिया, सुक्की दाद भी कोई नहीं देंगे, होर किसे देना की। मालक आपका सलामत करके बोलो यार, जश्न का माहौल है, ये पहला जश्न है। दर्जन से ज्यादा दफा काबा तामीर हुआ, लेकिन लकीर नहीं मिट सकी। 16 रजब को पूरा मक्का कह रहा था अली यहां से आए हैं, लकीर मौजूद थी। शेबे अबी तालिब आया, लकीर मौजूद थी। दावत जुल अशीर आई, लकीर मौजूद थी। खंदक आई, लकीर मौजूद थी। हिजरत की रात आई, नबी की जान बचाने के लिए नबी की जान नबी के बिस्तर में सोई, लकीर मौजूद थी। क्या क्या बताऊं, नबी दुनिया से चले गए, जहरन पर्दा कर गए, लकीर मौजूद थी। नबी के बाद में अब बात करनी है, नबी के बाद नया नया मुसलमान हज करने के लिए आया। जब काबे का चक्कर काटा, रुक गया, घर अल्लाह का, इसमें लकीर हो सकता है हुकूमत कमजोर हो, लकीर नहीं मिटवा सकी। जो तारीख से वाकिफ हो वो तो बोलो, दूसरे को समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है हुकूमत कमजोर हो, घर अल्लाह का, उसमें लकीर है, उसमें दरार है। चलो अगले चक्कर पे देखूंगा। नए नए मुसलमान ने अगले चक्कर पे उसी जगह कदम जमा लिए, फिर सोचने लगा, फिर कहने लगा घर अल्लाह का, उसमें लकीर वजह क्या है। साथ एक लंबे कद वाला खड़ा था, कहने लगा क्या कहता है, कहने लगा मैंने पूछना यह था कि अल्लाह का घर, उसमें लकीर वजह क्या है। उसने कहा चल लकीर छोड़, चल तवाफ कर, ये बाद में बताऊंगा। लेकिन एक शख्स ने सुन लिया, जिसकी कमर नून की तरह झुकी हुई, तो दिल पर विलायत अली का तमगा सजाए हुए, माथे पे मिन्ना अहले बैत का नूर चमकाए हुए, सलमान कहता आ मैं तुझे बताता हूँ ये लकीर क्यों है। हुआ यूं था कि 30 आमल फील 13 रजब को अली की माँ जमाने को अली देने आई। फौरन कहने लगा ओ मुसलमानों, जब काबे में अली आया है, तुमने कलमा सिर्फ मोहम्मद का क्यों बनाया। जब काबे में अली आया है, तुमने कलमा सिर्फ मोहम्मद का क्यों पढ़ाया। अच्छा, जिसे हम लकीर कहते हैं ना, जी जी, ये लकीर नहीं है। जिसे हम लकीर कहते हैं ये लकीर नहीं है। जब अभिनंदन पकड़ा गया था ना जी, वो मैं इत्तफाकन उस वक्त ज़ियारात पे था,
माशाल्लाह। یہ 2 سال نہیں جا سکتے، ویسے تو ہر سال مالک توفیق دیتے ہیں۔ زیارات پہ تھا تو جن دوستوں کے ساتھ میں ایران میں پڑھتا تھا، انڈین دوست تھے، تو ان کے ہاسٹل میں گیا تو بس ہنسی مذاق کے لیے ایک دوسرے کو چھیڑنے کے لیے ہم نے خبریں لگا لی، تو وہ خبروں کے نیچے ہندی زبان میں وہ ڈبے بنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ڈبے، ڈبے پہ ڈبہ، آگے پھر لکیر، پھر ڈبہ۔ انہوں نے کہا بھائی یہ ڈبے نہیں ہیں، یہ ہمارا ہندی رسم الخط ہے، ہندی زبان ہے۔ تو پتہ چلا جسے بندہ پڑھنا نہ جانتا ہو اسے لکیریں اور ڈبہ ہی کہتا ہے۔ آج پوری دنیا کا مسلمان یہی کہتا جا رہا ہے یہ کعبے کی دیوار میں لکیر ہے، یہ لکیر نہیں ہے، یہ اصل میں علی کی ماں کے قدموں نے کچھ لکھا ہے۔ یار وہ کہہ گیا ہے میرے علی کی ماں کے قدموں نے کچھ، چلو روکتا ہوں، یہاں پہ روکتا ہوں، مجھے 15 منٹ ہو گئے، میں لکیر کعبہ پہ، دیوار کعبہ پہ پڑھ رہا ہوں، اگر آپ توجہ فرما رہے ہو تو۔ علی کی ماں کے، میں کیا کہہ رہا تھا کہ لکیر موجود نبی کے جانے کے بعد بھی۔ بنو امیہ کی حکومت نے کتنی کوشش کی، کتنے اخراجات کیے، لکیر موجود تھی۔ عباسی حکومت نے اخراجات کیے۔ سعودیہ کی حکومت آپ نے کتنی دفعہ میڈیا پہ دیکھا کہ دنیا کے مصر، یمن، شام سے اعلیٰ قسم کے انجینئر بلائے گئے، چاندی، سیسا، تارکول، کیا کیا پگھلا کے ڈالا گیا، لیکن نہیں مٹ سکی۔ اب میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے جملہ دے رہا ہوں، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے۔ جو اتنا عرصہ ہو گیا ہر حکومت نے، ہر طاقت نے، ہر انجینئر نے، ہر نظام نے کوشش کی کہ لکیر مٹ سکے۔ میں نے پہلے کہا علی کی ماں کے قدموں نے کچھ لکھا ہے، لکیر نہیں مٹ سکی۔ اور لگانے والوں، جو علی کی ماں کے قدموں کا لکھا نہیں مٹا سکتے تو جن کے مقدر میں اللہ نے لعنت لکھی وہ کیسے مٹائے گی؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، جن کے مقدر میں اللہ نے لعنت لکھی وہ کیسے مٹ جائے گی؟ جس کعبہ میں علی علیہ السلام آئے ہیں، اس کعبہ کے 5 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 5۔ اچھا، بی بی جب کعبے کے پاس پہنچی تو محدث دہلوی کا یہ جملہ مجھے یاد آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں بی بی پہنچی تو بی بی نے چند جملے کہے دیوار کے پاس پہنچ کے، میرے اللہ تجھے سوا لاکھ انبیاء کا واسطہ، انبیاء پر نازل ہونے والے صحیفوں کا واسطہ۔ آگے بی بی نے ایک جملہ فرمایا، میں اس کو عربی میں پڑھوں تو لطف آئے گا۔ فرمایا اللہم بحق حاذا المولود الذی فی بطننا، میرے اللہ اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ بی بی نے یہ جملہ کہا، اللہ اللہ فراست کو میں کوئی بات کہہ رہا ہے، بی بی نے یہ جملہ کہا، دیوار شق ہو گئی۔ شیعہ پاگل تو نہیں، گولیاں بھی کھائیں، گالیاں بھی کھائیں، پھر بھی علی کو نہ چھوڑے۔ جو ماں کے شکم میں رہ کر اپنی ماں کی بھی مدد کرے اسے علی علی مدد نہیں کر سکتے، ایسے ہی نا، ایسے ہی این جی گالے علی نہیں مدد کر سکتے۔ ہوں تو آپ کو پتا ہوئے مولوی کی یاد آ تو پھیرے نا۔ بسم اللہ، تشریف ہے، ٹھیک ہے۔ علی مدد نہیں کر سکتے۔ اسی ایک ملنگ کا مناظرہ ہو گیا، میر شاہ صاحب آئے، او بسم اللہ شاہ صاحب تشریف لے آئیں جی، مرشد آئیں، آئیں جی، آئیں شاہ صاحب مالک آپ کو سلام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی حق، 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 حسینیت، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ دیکھ لیں
मरीज हैं सैयद, हाँ हाँ और विलायत अली जज्बे का नाम है। बेशक ये बेशक खून मांगती है, ये कलेजा मांगती है, लेकिन आपने नवाज शरीफ बन के बैठे रहना। शाह जी आज मैं पूरा अशरा भी पढ़िया, लेकिन आज में लगता है मैं पेशावर पढ़ रहा हूँ। पेशावर में एक मजलिस पढ़ के आया, उन्होंने कहा जी आपने अपनी ईमानदारी पे पढ़ना है, हम नहीं बोलता, तो तुम नहीं बोलता तो हमारा कत्ल हो जाएगा। तो जो कर शाह साहब तो जिस काबे में अली आए हैं, इस काबे के 5 नाम हैं तारीख के अंदर। काबे के कितने नाम हैं? 5। पहला नाम है काबा, काबे का मतलब है बुलंद जगह। दूसरा नाम है किबला, किबले का मतलब है जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाए। तीसरा नाम है बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। चौथा नाम है बैतुल अतीक, जो हराम, जो पुराना घर हो, जो पहला घर हो, उसे कहते हैं। और मैं जुमला पढ़ना है, जुमला पढ़ के फिर पता चलना है मैं बंदों में ही पढ़ रहा हूँ, जिंदों में पढ़ रहा हूँ, कब्रिस्तान में नहीं बस्ती में पढ़ रहा हूँ। 5वां नाम है बैतुल हराम। क्या मतलब? जहां मुशरक का दाखिला ममनू हो ना। 1 मिनट के लिए बंदा सेंटर में बैठा हुआ है, चादर कस के ली हुई है, दोनों हाथ बंधे हुए हैं, और फिर इतना सोया हुआ मौलवी नहीं हूँ, बंदा दरमियान में हो, चुप बैठा हो और पढ़ता रहूं। मरले की मस्जिद हो ना, छोटा सा बच्चा जाए तो बाबा पहली साहब से कहता ओए किंदा है इन कड्डो बार, क्यों बाबा जी? ओ किदे पुत्र शी ना कर देवे। और जिस बच्चे की तहारत पे शक हो, उसे मरने की मस्जिद में नहीं जाने देता। कायनात में वह वली है जो काबे में आया है, कभी पूछा है ये किसका है? क्या कहेगा उस बच्चे के बारे, उस बच्चे के बारे गर्दन हिलाता बाबा पूछता है ओए किंदा है, ओ ये किसका है? इसको निकालो। एक ही है जो काबे में आया है, कभी पूछा है ये किस? खबरदार, किसी ने टीवी पे बैठ के कहा था कि अली ने शराब पी थी। जब हम बताने पे आ गए ना तो बता देंगे, जब तारीख में शराब हराम करार दी गई तो किस किस के घर से शराब के मटके बरामद हुए थे। कहां से रिवायत आया है? हमने तो वो रिवायत पढ़ी है, अली बादशाह फरमाते हैं शराब का एक कतरा अगर दरिया में डाला जाए, दरिया का पानी नहर में आए, नहर का पानी नदी में आए, वो नदी से गुजरता हुआ फसल में आए, फसल जवान हो जाए, वो जवान फसल कोई घोड़ा खाए, अली उस घोड़े पे सवारी शराब रिज्स है, अली अल-कबूर रिज्स है। भाई शाह साहब 2 सैयद मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, इनके लिए क़यामत वाले दिन मुझे जुमले की गवाही चाहिए। जुमला कह रहा हूँ, शराब क्यों हराम है? क्यों हराम है? मालिक तो कहता है जन्नत में शराबे तहुरा मिलेगी, लेकिन कहता है ये हराम है। अल्लाह ने कहा ये इसलिए हराम है, पंजाबी में जुमला है, ये इसलिए हराम है, इन्ना आप क्यों बनाइए, इन्ना नहीं मैं समझाता हूँ, इन्ना आप क्यों बनाइए? जब अल्लाह को बंदों का बनाया हुआ जान पसंद नहीं तो बंदों का बनाया हुआ ईमान कैसे बनाए? कुरान के क्या कहने? जियो जियो कुरान के कितने पारे हैं? कितने पाक अली हैं? कुरान के कितने पारे हैं? बोलो तो अगे इल्जाम एक शिया दे 4 पारे तुझे बोलते ही नहीं पाए। 30 है, 3 दफा 10-10 गिनो तो 10 10 10 30 है। काश कोई और पढ़ता, मैं सुनता, फिर उसकी मैं कदर करता, कितनी कदर है जुमला कहने की। लेकिन अगर अपनी फसलियों से निकाल रहा हूँ 13 रजब को जुमला, तो फिर फरासत कमी का हक जरूर देना। कलेजा मिंबर पर रख रहा हूँ 10 10 10
3 दफा 10 गिनो तो फिर 30 बनता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, पहले 10 बचपन को ठीक करने के लिए, दूसरे 10 जवानी को ठीक करने के लिए, तीसरे 10 बुढ़ापा ठीक करने के लिए। और जना वाले अली का बचपन इतना पाक है, कहवे में आमद है, जवानी इतनी पाक है, फतूल में शादी है, बुढ़ापा इतना पाक है, मस्जिद में शादी। मुकाबला उस बंदे से करता है जिसके सगे बेटे ने कहा था बाबा घोड़े वो मारे जिसने खुद शराब ना पी। घोड़े वो मारे। आखिरी जुमला इस अली बादशाह की एक हसरत है। अली बादशाह से पूछा गया कि आपकी कोई हसरतें हैं, किसी पे छोड़ रहा हूं। शाह जी जिस टाइम तक बंदे बुलाते रहे, ढोल बजते रहे, उस टाइम तक तुम पढ़ाते रहे हो। हुण बंदे बैठे थे, हुण में नाते ने खत्म करे। ये फरासत रुपये के साथ आज ठीक नहीं हुआ। बहरहाल मेरी किस्मत है, मैंने कीमती वक्त निकाला और कोई सारी मसरूफियात छोड़ी। मालिक आप उस अली बादशाह से पूछा गया आपकी कोई हसरत? फरमाया मेरी एक नहीं, मेरी 2 हसरतें हैं। बुजुर्गान सिर्फ दिल में दुआ दे दे, जवानों आप जरूर बोलना आप मेरा कल हो। पहली हसरत, जितना इल्म था इतना किसी ने पूछा नहीं। बंदा मजमे से खड़ा हो गया, कहने लगा या अली बंदा हो गया इतना बड़ा दावा, तो मैं पूछ क्या पूछता है। जिंदगी में पहली दफा उसने कहा मेरे दिल के राज जानते हो अबू तालिब का पुत्र। पहली दफा फखराना अंदाज में मुस्कुरा कर फरमाते बदबख्त तू तो दिल रखता है, अली उसके भी राज जानता है जो दिल ही नहीं रखता। दूसरी हसरत, जितना मेरे पास रिस्क था इतना किसी ने मांगा नहीं। बस छोड़ने लगा हूं यार। और यही तो वजह है, शख्स की बच्ची बीमार हुई, हमसाये के घर गया, हकीमों ने, तबीबों ने, डॉक्टरों ने मुझे शहद बताया है, माखी शहद चाहिए। कहा मेरे पास नहीं, अलबत्ता यहाँ पे रुक जा, एक काफिला आने वाला है, उसमें अगर एक जवान हुआ उसके पास शहद हुआ जरूर मिल जाएगा। वो खड़ा हुआ, इंतजार करने लगा। वो कहता है मेरी किस्मत कि थोड़ी देर के बाद एक काफिला आया, कहता है और ज्यादा किस्मत, यहाँ मैंने क्या देखा, यहाँ मैंने क्या देखा, यहाँ मैंने, रखोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ मैंने क्या देखा कि उस काफिले में मेरी किस्मत, उस काफिले के फ्रंट पे अली इब्न अबी तालिब थे। बोला यार, मैं जितना मेरे पास रिस्क था इतना किसी ने मांगा नहीं, इसी पर छोड़ रहा हूँ। फिर अगले साल अल्लाह जाने कौन होगा अबू तालिब से ईदी हासिल करेगा। इसी जुमले पे बोलना अबू तालिब खुश हुए, आपकी निजात के लिए काफी है। या अली शहद मिल जाएगी? फरमाया हाँ। गंबर जी मौला इसको शहद दो। फरमाया मौला शहद ऊंट पे है, मटके में है। फरमाया मटका दे दो, मटका दे दो। तुसी ना बोल के मेरा कोई नहीं नुकसान करना। मैंने पहले कहा है उसका जिक्र है जो बंद लबों की भी बोली जाता है। मटका दे दो। मौला मटके 2 हैं, अगर एक दे दिया तो दूसरा ऊंट पे बराबर नहीं रहेगा। फरमाया दूसरा भी दे दो। मौला 2 दे दूं, ये अकेला है, सवारी है कोई ना, उठा के कैसे ले जाएगा? फरमाया ऊंट समेत दे दो। मैं बंदों में, कदरदानों में, अली वालों में बढ़ रहा हूं, ऊंट समेत दे दो। बाद में मौला ने कंबर से पूछा, आखिरी जो मैं छोड़ रहा हूं, कंबर से पूछा कंबर जब मैंने पहले मटके का कहा तू साथ था, जब दूसरे का कहा साथ था, जब मैंने ऊंट का कहा साथ था, लेकिन जैसे ऊंट का कहा फौरन जंप लगा के हट गया। कहने लगा मौला आप सखावत की परवाज में थे, कहीं ऐसे न कह देते।